اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم زیارت کرتے ہیں جبل رحمت کی، اور آپ لوگوں کو بھی زیارت کرواتے ہیں جبل رحمت کی، یعنی کہ میدان عرفات اور جبل رحمت کی زیارت کرواتے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو سب سے پہلے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو ہم چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جبل رحمت، اور جبل رحمت کی زیارت بھی کرواتے ہیں اور میدان عرفات کے بارے میں معلومات بھی آپ لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں، بس پہ سوار ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو بس والا بھی کچھ معلومات دے گا۔ ہم کچھ معلومات جو ہے نا بس والے سے بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابا ہوا کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اور ابا ہوا علیہ السلام کو ادھر سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جدہ شہر دیکھے نا آپ سب نے۔ تو ابا ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ادھر اتارا، تو جب آپ ابا ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں بٹھتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ پاک مجھے میری ہوا سے ملا دے، اور ابا ہوا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے آدم سے ملا دے۔ تو ایسا تقریباً 40 سال کے بعد ابا ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات میں ایک ہی وقت ایک ہی ٹائم ہوتا ہے۔ ایک سائڈ سے ابا ہوا میدان عرفات میں داخل ہوتی ہے، دوسری سائڈ سے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو ایسا وہ میدان عرفات میں دعا کرتے رہتے ہیں، 40 سال وہ اس دنیا میں دعا کرتے ہیں، پھر 40 سال کے بعد ان کی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے جبل رحمت میں۔ بس والے کی معلومات ہم لوگوں نے اسی لیے آپ لوگوں کو سنوائی ہے، جو حجاج کرام یا عمرے کے لیے یا حج کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو زیارات کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ تو جو بس پہ آپ لوگ جاؤ گے تو بس میں لوگ ہوتے ہیں جو معلومات دیتے ہیں، جو بتاتے ہیں زیارت کے بارے میں کہ فلاں زیارت پہ جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ معلومات دیتے ہیں۔ جیسے ہم میدان عرفات جا رہے ہیں، جبل رحمت جا رہے ہیں، تو وہ جبل رحمت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جبل رحمت پہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کی ملاقات وہاں پہ ہوئی تھی، جب ان کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا، اور پھر جو ان کی معافی تھی، جو توبہ تھی، وہ یہیں پہ قبول ہوئی جبل رحمت پہ۔ اور اماں ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا اسی جو ہے نا جبل پر، جبل رحمت پر، جبل توبہ بھی اسے کہا جاتا ہے، اسی جبل پر جو ہے نا ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو ان کا سنانے کا مقصد میرا یہ تھا تاکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو وہ بسوں پہ زیارت کر لیا کریں، تاکہ بس والے سے کچھ معلومات بھی آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو میدان عرفات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مناسک حج بھی سکھائے تھے۔ یہاں پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ روز محشر جو ہے یہاں پر حشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے۔ اس میدان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 198 میں۔ تو علماء اکرام نے اس آیت کی تفسیر کچھ یوں بیان کی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائے، پھر جب مغرب کا وقت شروع ہو عرفات کا میدان چھوڑ دیا جائے، اور یہاں پر جو ہے نا ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی جائے گی، ایک اذان ہوگی اور 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائے گی، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد جیسے سورج نکلے میدان عرفات میں
पहुँच जाना चाहिए सूरज निकलने के बाद, यानी कि ज़वाल से पहले। और यहाँ पर एक अज़ान होगी और 2 नमाज़ें ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़ी जाएँगी और फिर यहाँ पर इंतज़ार किया जाएगा। जैसे ही मग़रिब होगी, मग़रिब के बाद यहाँ से मुज़ल्फ़ा की तरफ जो है ना, हुज्जाज इकराम जो है ना रवाना हो जाएँगे और मुज़ल्फ़ा में भी अज़ान जो है ना होगी और मग़रिब और इशा इकट्ठी पढ़ी जाएगी। अगर मैदान अरफ़ात में जो है मग़रिब पढ़ी जाएगी तो वो नमाज़ मग़रिब यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि मुज़ल्फ़ा में ही पढ़नी होती है। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर इस एरिये में मैदान अरफ़ात की तरफ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लोगों ने बेचने के लिए कुछ चीज़ें भी लगाई हुई हैं, तो आगे आपको मालूमात भी देते जाते हैं और यहाँ पे हम चीज़ें भी दिखाते जाते हैं। अगर आप लोगों ने कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ लेना है मैदान अरफ़ात की तरफ जाते हुए, तो यहाँ पर बसें जहाँ रुकेंगी, आप लोगों ने जब बस पे आना है तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि बस का नंबर ज़रूर याद रखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बसेज़ होती हैं, फिर पता नहीं चलता कि हम कौन-सी बस पे आए हैं। तो आपने बस का नंबर याद रखना है और जो बस वाले ने टाइम देना है उसके मुताबिक फिर वापस आना है। ये देखें जाए नमाज़ भी हैं यहाँ पे, आप ले सकते हैं। वो बता रहे हैं कि 10 रियाल में है, तो आप 10 रियाल की ले सकते हैं। तो हम आ चुके हैं जबल रहमत के सामने। जो ऊपर थोड़ा-सा मीनार नज़र आ रहा है, ये है जबल रहमत, यानी कि रहमत का पहाड़। जबल जो है पहाड़ को कहा जाता है, इसे जबल तौबा भी कहा जाता है। और जो मैदान है, मैदान अरफ़ात की तरफ हम आ चुके हैं और जबल रहमत की तरफ आ चुके हैं। तो इंशाअल्लाह हम ऊपर भी चढ़ेंगे, आप लोगों को ऊपर के मनाज़र भी दिखाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हिज्जतुल विदा का खुतबा भी यहाँ पे फ़रमाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिज्जतुल विदा का खुतबा फ़रमाया था, उसमें जो है ना कुछ कुरानी आयात भी नाज़िल हुई थी। उसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। और मुसलमानों को 3 खुशखबरियाँ सुनाई गई, तकमील दीन, तकमील कुरान और अल्लाह ताला का दीन इस्लाम को पसंद करना। सहाबा इकराम को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करना, जुमे के दिन हज का होना और अरफात का मैदान होना, इस मैदान में एक तारीखी पहाड़, तारीखी जबल है, जबल रहमत है। जिस तरफ हम जा रहे हैं, तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया था, जिसे सुनकर सहाबा इकराम को अंदाज़ा हो रहा था कि शायद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार इशारतन फरमा रहे थे कि मुझसे मनासिक के हज सीख लो, शायद इस हज के बाद मैं कोई और हज अदा ना कर सकूँ। एक हदीस मुबारका में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ा की शाम को मैदान अरफ़ात में उम्मत की मग़फ़रत की दुआ मांगी और बड़ी गिरियाज़ारी की, जिसके जवाब में रहमत इलाही जोश में आई और इरशाद हुआ कि मैंने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई और जो गुनाह बंदों ने किए माफ़ कर दिए, अलबत्ता जो जुल्म एक दूसरे पर किए उनका बदला लिया जाएगा। ये देखें हम पहुँच चुके हैं मैदान अरफ़ात में। ये सारा जो एरिया है नीचे, ये मैदान अरफ़ात का है और यहाँ पर जब हज का मौसम होता है, यानी कि हज होती है, तो ये सारा जो है ना सफ़ेद चादर जो है ना ओढ़ लेता है ये मैदान और ये जबल, क्योंकि ये सारे हुज्जाज इकराम जो है ना एहराम की हालत में होते हैं और बहुत यहाँ पर रश होता है। तो हम कोशिश करेंगे ऊपर जाने की, तो हम जाते हैं ऊपर। यहाँ पर लोग जो है ना दुआएँ माँग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर दुआ माँगने की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी यहाँ पर दुआएँ माँगी हैं इस जबल पर और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ पर दुआएँ माँगी हैं और तौबा की है और तौबा कबूल भी हुई है। तो हम कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की, तो कहीं न कहीं से यहाँ पे सीढ़ी है, तो हम सीढ़ी को तलाश करते हैं और सीढ़ी के ज़रिए हम जो है ना ऊपर जबल पर जाएँगे। तो हम ये देखें, हम ढूँढ रहे हैं सीढ़ी। तो आप भी जब आएँ हज की अदायगी के लिए या उम्रे की अदायगी के लिए, तो आप जब
यहाँ पे ज़ियारत के लिए आएंगे, हज के लिए, तो आपको ज़रूर ही आना पड़ेगा यहाँ पर मैदान अरफात में। अगर कोई उम्रे के लिए आता है तो वो भी ज़ियारत के लिए ज़रूर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और जब यहाँ पर आएँ तो कुछ लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं कि ऊपर पहाड़ पर डायरेक्ट चढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो आप ऐसा ना करें। आप यहाँ पे सीढ़ी है, सीढ़ी तलाश करें और सीढ़ी के ज़रिए जाएँ, और चारों तरफ आप चक्कर लगा लें, पहाड़ के, जबल के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं सीढ़ी ज़रूर मिलेगी। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं सीढ़ी को ढूंढने की, तो इंशाल्लाह हमें मिल जाएगी। हम फिर नीचे उतर के जा रहे हैं और सीढ़ी ढूंढ रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, लोगों से पूछ लिया करें, जब आप ज़ियारत के लिए आया करें तो पूछ लिया करें, ये ना हो कि आप ढूंढते रहें। तो हम अब जा रहे हैं सीढ़ी ढूंढने, तो माशाल्लाह हमें मिल जाएगी इंशाल्लाह सीढ़ी। तो हम ऊपर जो है ना, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खुतबा दिया था, तो हम वहाँ पर जाएंगे इंशाल्लाह, वो ज़ियारत भी करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं सीढ़ी की ढूंढने की। तो हम नीचे आ गए हैं और साइड से जहाँ से ये लोग जा रहे हैं यहीं पे सीढ़ी है, माशाल्लाह हमें सीढ़ी मिल गई, अल्लाह अकबर। हम ऊपर जा रहे हैं, माशाल्लाह से हम पहुँच चुके हैं ऊपर। और ये देखें जबल रहमत पे हम आ चुके हैं और आप लोगों को ज़ियारत करवा रहे हैं। पर जो है ना हज का इंतज़ाम होता है, हज के इंतज़ाम में अरफात का जो मैदान है चंद घंटों के लिए तो खैमा बस्ती बन जाता है, जो मीलों पर मुहित है। वकूफ़ अरफात यानी कि हाजी मैदान अरफात में मौजूद होना जो है ना ज़रूरी है। अरफा का दिन और अरफात का मैदान वो बाबरकत मकाम है जहाँ अल्लाह ताला की जानब से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशखबरी नाजिल हुई थी। इस्लाम का दीन मुकम्मल और उम्मत पर शरीयत की तकमील का अजीम नेमत जो है ना पूरी हुई थी। और अरफात के मैदान में इज्तिमा उम्मत मुस्लिमा की अज़मत और भरम की भी अलामत है। तो दूसरी जानब मुसलमानों को मसावात और भाईचारे का दर्स भी दिया जाता है। अल्लाह ताला के अजीम नुमाइंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के तारीख़ी खुतबे में इस लफ्ज़ पर शदीद इसरार किया। इस मुबारक खुतबे में कहा गया कि ए लोगो, यकीनन तुम्हारा खून और माल तुम पर हराम है, जिनके पास अमानत हो इसके हवाले कर दें। जहालत मेरे कदमों के नीचे है, और औरतों के बारे में अल्लाह ताला से डरो, और अगर अल्लाह ताला की किताब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करोगे तो कभी भी रास्ते से नहीं भटकोगे। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। ए लोगो, तुम्हारा रब एक है, तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे। तुम में बेहतर वो शख्स है जो अल्लाह ताला से ज़्यादा डरता हो। तो हम जो है ना, ये खुतबे का जो है मौजू था, तो कुछ हमने बयान कर दिया। तो हम अब ऊपर हैं, सारा जो है जबल आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये साइडों से भी, यहाँ पे भी चीज़ें लोगों ने रखी हुई हैं बेचने के लिए, अगर आप लोगों ने कुछ लेना है तो आप ख़रीद कर सकते हैं। ये ऊपर हम सारा जो है ना साइडों पे जबल रहमत के ऊपर खड़े होके, जो साइडों पे अरफात का मैदान है, तो ऊपर से सारा जो है ना चारों तरफ नज़र आता है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन ये हज के मौके पर ये पूरा फुल होता है। यहाँ पे सारे हुज्जाज जो है ना एहराम की हालत में होते हैं और कोई जगह जो है ना नज़र नहीं आती, ये मैदान खाली नहीं होता, ये भरा हुआ होता है माशाल्लाह से। ये दूर दूर तक जो है यहाँ पर हाजी जो है ना होते हैं। ये देखिए नीचे जो सीढ़ी, यहाँ से हम आए थे, ये सीढ़ी नज़र आ रही है। तो हम माशाल्लाह से हम वहाँ से उतर आए और नीचे मैदान में जो है कबूतर हैं, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मैदान है। तो यहाँ पर देखिए हम वापस आ गए और ये साइडों पे जो है गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, किसी ने आइसक्रीम वगैरह खानी हो तो आप ले सकते हैं, खाने की चीज़ें भी साइडों पे रखी हुई हैं लोगों ने, आप ले सकते हैं। साथ पानी वगैरह जब ज़ियारत के लिए आएँ तो ले आएँ, क्योंकि पानी का फिर मसला होता है, पानी नहीं मिलता। ये हम मैदान अरफात में अब जो है मौजूद हैं। तो इसी वीडियो के साथ हम लोग आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।